ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। वी हैव स्टडीड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ some special type of questions. First category, that is when qx is given as e raised to the power mx or sin ax cos ax, but I will discuss when qx is given as sec ax or cosec hyperbolic ax. These type of questions I will discuss today. Now first we take first question, d2y by dx square plus a square y is equal to sec ax. Because sec ax is not in our short form of pi, then we will discuss this question in this lecture. The given equation can be written as, when we write d by dx as capital D, then we can write this question as d square plus a square into y is equal to sec ax. Now if we put y is equal to e raised to the power mx and q is equal to 0, means sec ax is equal to 0 in this equation, then the auxiliary equation to finding CF is m square plus a square is equal to 0, or m square is equal to plus minus iota a. This implies CF is equals to e raised to the power 0x into c1 cos ax plus c2 sin ax. So this is our CF. Now we find pi, and pi is 1 upon d square plus a square sec ax. This is pi, and d square plus a square can be written as d plus iota a and d minus iota a. Product of these two brackets, or these are the factors of d square plus a square and sec x. Now we fraction this term, then we get 1 upon 2 iota a, 1 upon d minus iota a minus 1 upon d plus iota a is sec ax. So 1 upon 2 iota a, we can write this as 1 upon d minus iota a sec ax and minus 1 upon d plus iota a sec ax. So 1 upon 2 iota a e raised to the power iota ax, मूल नियम से, fundamental rule to find pi, we get this as e raised to the power iota ax integral e raised to the power minus iota ax sec ax dx. तो मूल नियम से अपन ने इसका मान रख दिया, और इसी प्रकार आगे वाले का भी मान रख दें तो e raised to the power minus iota ax e raised to the power iota ax sec ax dx. This is equal to 1 upon 2 iota a e raised to the power iota ax cos ax minus iota sin ax e raised to the power, value of e raised to the power iota x, we can know that the value of e raised to the power iota x is cos x minus iota sin x. Then we put the value of e raised to the power minus iota x. It is cos ax minus iota sin ax into sec ax, and in second term we can write the value of e raised to the power iota ax as cos ax plus iota sin ax into sec ax. Now we solve this expression, we get 1 upon 2 iota a e raised to the power iota ax. Now cos ax into sec ax is 1, so it is only integral dx, and iota sin ax into sec ax is iota tan ax dx. Similarly in second term we get integral dx plus iota tan ax dx. Now it will become 1 upon 2 iota a e raised to the power iota ax, integral of dx is x, and this is minus 1 upon a log cos ax dx, integral of tan ax. log sec x होता है तो माइनस लगा के अपन ने log cosec x लिख दिया है,
क्योंकि अभी ई रेस टू द पावर आइटा एक्स की वैल्यू कॉस एक्स माइनस आइटा साइन एक्स रखेंगे, तो इसलिए इसको माइनस लगा के लॉग सेक एक्स को लॉग कॉस ए एक्स ही लिख दिया। सिमिलरली इन सेकेंड टर्म वी गेट ई रेस टू द पावर माइनस आइटा एक्स माइनस आइटा बाई ए लॉग कॉस ए एक्स बाई ए, तो माइनस बाहर लगा दिया और ये लिख दिया। तो 1/2 आइटा ए ये हो गया। दोनों टर्मों में से x अगर अपन कॉमन ले लें तो ये होगा ई रेस टू द पावर आइटा एक्स ई रेस टू द पावर माइनस आइटा एक्स। इसी प्रकार आयोटा ए कॉमन ले लिया, लॉग कॉस ए एक्स कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा ई रेस टू द पावर आइटा एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस आइटा एक्स। तो ये बन गया 2 आयोटा एक्स साइन ए एक्स, क्योंकि वैल्यू ऑफ 2 आयोटा ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स इज 2 आयोटा साइन ए एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज कॉस ए एक्स। 2 आयोटा अपॉन ए तो था ही, ये रहने दिया, और कॉस ए एक्स हो गया लॉग कॉस ए एक्स। सही। तो बिकॉज वी नो दैट ई रेस टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2 इज कॉस एक्स, and e raised to the power minus iota x minus e raised to the power minus iota x by 2 is iota sin x. So we get this expression, and this is as pi. We get this as pi. So pi is equal to x upon 2 sin ax plus 1 upon a square cos ax log ax log cos ax. So complete solution is y is equal to cf plus pi. As we get CF from equation number 2 and PI from above, then we get C1 cos AX plus C2 sin AX plus x by 2 sin AX plus 1 upon a square cos AX log cos AX. This is the complete solution of given equation. तो इस प्रकार अगर sec AX दी राइट हैंड साइड में QX में दे रखा है, जिसकी लघु विधियाँ हमारे पास नहीं थी, तो उसको किसी तरह से अपन ने ई की पावर आइटा एक्स को वैल्यू रख के और इस रूप में डाल के अपन ने सीधी वैल्यू निकाल ली। ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। ई रेस टू दी सॉल्व दिस क्वेश्चन इज सॉल्व 3d2y by dx स्क्वायर प्लस 2dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x by 2 प्लस 2 ई रेस टू दी पावर 3x. If we put y is equal to, we can write this equation in the form of d as 3d square plus 2d minus 1 is equal to into y is equal to e raised to the power x by 2 plus 2 e raised to the power 3x. Putting y is equal to e raised to the power mx and q is equal to 0. Then auxiliary equation is 3m square plus 2m minus 1 is equal to 0. Now we can find out the roots to write CF complementary function. So m is factor is 3m minus 1 and m plus 1 is equal to 0, and m is equal to minus 1 by 3 and minus 1 minus 1. Therefore CF is, both are real and distinct, so CF is c1 e raised to the power x by 3 plus c2 e raised to the power minus x. Now we come to find out pi. Now we can write pi as 1 upon 3d square plus 2d minus 1 into e raised to the power x by 2 plus 2 e raised to the power 3x. Now we separate them in two terms. Then लघु विधि जो अपन ने पढ़ी, शॉर्ट मेथड जो पढ़ा है, उसमें पहले वाले के लिए तो अपन d की जगह x by 2 लिख दें, क्योंकि नीचे ज़ीरो नहीं बन रहा है, और दूसरे वाले में भी अगर ज़ीरो नहीं बन रहा है तो उसकी जगह भी अपन d की जगह 3 लिख दें, तो ये लिख सकते हैं। क्योंकि ज़ीरो नहीं बन रहा, तो ये लघु विधि से एक लाइन के अंदर सीधा अपन ने निकाल लिया पीआई। अदरवाइज़ अपने को सब इंटीग्रल करके वैसे ही लिखना पड़ता है, फैक्टराइज करके। तो ये लघु विधि की विशेषता है कि जो पहले वाले प्रश्न में अपन ने किया था सबको अलग अलग करके और वैल्यू लिख के, वैसा इसमें नहीं करना। इसमें डायरेक्ट अपन आसानी से कर सकते हैं। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज़ y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वाई इज इक्वल टू सी एफ अपन ने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला था, पी आई इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है, तो दोनों को जोड़ के लिख दिया। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन हियर, which is d4 minus a4y is equal to cos hyperbolic ax.
सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सबसे पहले तो अगर अपन वाई सी एफ निकालने के लिए वाई बराबर ई की पावर एम एक्स रखें और क्यू को ज़ीरो रखें, राइट हैंड साइड को ज़ीरो कर दें, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम फोर माइनस ए फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके फैक्टर करें तो एम माइनस ए एम प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एम के मान आ गए ए माइनस ए और प्लस माइनस आइटा ए। तो सी एफ बन गया सी वन ई रेस टू द पावर ए एक्स प्लस सी टू ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर, रियल पार्ट जीरो है तो ई रेस टू दी पावर जीरो एक्स, तो रियल पार्ट कॉस ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स। तो पी ये आ गया अपना सी एफ। तो सी एफ फाइनली बना सी वन ई रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस सी टू ई रेस टू दी पावर माइनस ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स प्लस आइटा साइन ए एक्स। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन, दैट इज सी एफ, and equation number 2, that is CF. Now we can find out the value of PI, and PI is equals to 1 upon d4 minus a4 cos hyperbolic mx. अब ये cos hyperbolic mx को अपन आइटा e की पावर में लिख के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो cos hyperbolic या sin hyperbolic आ जाए तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो PI इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन, इसके फैक्टर थे d माइनस ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई रेस टू दी पावर, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू अपन जानते हैं ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू। तो ये कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स है, तो ये आ गया ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स बाई टू। तो ये दो टर्म में तोड़ दिया इसको, तो 1/2 डी माइनस ए 1 अपॉन डी माइनस ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स एंड प्लस 1/2 1 अपॉन डी माइनस ए डी प्लस ए एंड डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स। तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू, अब इसमें d बराबर a लिखना है जहाँ ज़ीरो नहीं बन रहा। तो फर्स्ट टर्म में अगर अपन देख रहे हैं तो d माइनस ए से a माइनस ए ज़ीरो बन रहा है, तो इसको तो छोड़ दें। इसमें ये a प्लस ए और इसमें a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, तो वो लिख सकते हैं। तो इसमें अपन ने ये फर्स्ट टर्म जिससे d बराबर a लिखने पर ज़ीरो हो रहा था, तो उसको तो अपन ने लघु विधि से जिसमें f ए ज़ीरो बन रहा है उस विधि से इसको अब सॉल्व किया, तो ये x अपॉन फैक्टोरियल बना गया, ये आ गया x अपॉन फैक्टोरियल बना, e की पावर x आ गया। और वो जो दोनों टर्म जिनमें ज़ीरो नहीं बन रहा था वो टर्म एज इट इज़ आ गई। इसी प्रकार दूसरे में देखें तो d बराबर माइनस ए रखने पर ये टर्म ज़ीरो बन रही है, ये वाली टर्म ज़ीरो बन रही है, तो इसको तो छोड़ दें, बाकी की जगह रख दें। तो पहली टर्म में d की जगह माइनस ए रखा तो माइनस ए, इसमें माइनस ए रखा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको रखने से ज़ीरो बन रही थी, तो ये आ गया x बटे फैक्टोरियल 1, उसी रूल से जो अपन ने लघु विधि में पढ़ा था e की पावर ax के लिए। तो ये हो गया 8x तो है ही, और 2a इंटू 2a स्क्वायर और 1/2 पहले रखा है, तो ये तो 8 हो गया, x बाई 8 बन गया, और ये हो गया e रेस टू दी पावर ax, और नीचे बन गया a क्यूब माइनस x बाई 8 ई रेस टू दी पावर माइनस ax, ये भी a क्यूब बन गया। तो x बाई 4a क्यूब ई की पावर ax माइनस ई की पावर माइनस ax बाई 2, तो ये बन गया x अपॉन 4a क्यूब। ये साइन हाइपरबोलिक ax ही है, तो वापस अपन ने क्वेश्चन जो कॉस हाइपरबोलिक ax में दे रखा था उसको वापस साइन हाइपरबोलिक ax में लिख सकते हैं, तो लिख दिया। तो जनरल सॉल्यूशन अब फिर अपना बन गया CF प्लस PI। तो CF अपने ऊपर निकाला ही था, CF ये रहा C1 ई रेस टू दी पावर ax प्लस C2 ई रेस टू दी पावर माइनस ax प्लस कॉस ax प्लस आइटा साइन ax, और PI अपन ने निकाला है प्लस x बटे 4a क्यूब साइन हाइपरबोलिक ax। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपन ने जो कॉस हाइपरबोलिक था e की पावर x और e की पावर माइनस x में लिख के सॉल्व कर लिया, लघु विधि काम में भी ले ली। तो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में काम में आती हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक तरह से इसको सॉल्व करिए। इस प्रकार पहली लघु विधि में जो अलग तरह से क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे अपन ने देखे, और बाकी तो ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं जिनमें राइट साइड में e की पावर 2x e की पावर 3x कुछ इस रूप में दे दे तो उनको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन राइट साइड में लघु विधि के अलावा कोई मेथड हो तो वो अपन ने देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन ax या कॉस ax राइट साइड में दे रखा है qx की जगह,
तो उनको कैसे सॉल्व करें ये देखेंगे। उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट या टिपिकल क्वेश्चंस बनेंगे, उनको उस समय सॉल्व करेंगे। जैसे सेक एक्स था वैसे ही साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स आता है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा उनकी लघु विधि पहले पढ़ेंगे, और फिर बिना पीआई को मूल नियम से निकाले, जो फंडामेंटल रूल है पीआई का, उसको निकाले बिना हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके लघु विधि से 2-3 लाइनों में उसका आंसर लिख लेंगे। अगर नीचे ज़ीरो नहीं बन रहा है, तो ज़ीरो बन रहा है तो उसकी विधि भी है, वो इसमें अलग से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको काम में ले लेंगे। तो इस तरह से फिर दूसरी विधि का लेक्चर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे।